A very good morning, dear students. Let's discuss the summary of the chapter Discovering Tut the Saga continues. But before that, we will start with the positive quote. Every changing color of leaf is beautiful and every situation of life is meaningful but needs a clear vision. Okay, so understand that quote and apply it in your life. Now, here is the summary of this chapter. First of all, we will discuss the background of this chapter and I am going to explain the title of this chapter, Discovering Tut the Saga continues. First of all, Tut here stands for the Egyptian king Tutankhamun. Okay, and the long story, saga means the long story continues even after his death. Okay, and the Egyptian kings, they believe that there is life after that. And now we are going to start from the background of this chapter. King Tut here stands for Tutankhamun, as I described you earlier, an Egyptian pharaoh. He died a mysterious death at the age of 19 only. And with the death of King Tut, okay, now ending the rule of most powerful dynasty, उनकी भी end हो गया वहाँ पर because he was the last ruler. And now मम्मी buried in the valley of the kings, जहाँ पर सभी इजिप्शियन किंग्स को बरी किया जाता है, वहीं पर किंग टुट को भी क्या किया गया, बरी किया गया. And it was unknown till early 20th century. And now who found the tomb of King Tut? Okay, we will describe here in this chapter. Next is here the day of CT scan. Tut's mummy was to be CT scanned now. Zahi Hawass, he had the responsibility, who was the Secretary General of Egypt Council of Antiquities. Actually, he was very disturbed in the beginning. And now he came to know that different tourists thronged to visit 26 feet underground tomb. एंड हेयर इज द pharaoh कर्स जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, दैट हु डिस्टर्ब द डेड किंग. तो वहाँ पर क्या होते हैं, लोग उन pharaoh के जो कर्स के बारे में बातें करते हैं. Sky overcast with dark clouds. If anyone tries to disturb the dead kings, so atmospheric changes भी काफ़ी आ जाते हैं, mystery create हो जाती है. And now when ultimately it was found there, Tut's tummy was found in a bad condition. It was not in a good condition. And who found it? Howard Carter. Howard Carter, a British archaeologist, he discovered Tut tomb in 1922. And when it was found, at that time, tomb contained gold jewelry with articles of everyday use like oil, perfume, wine, board games, etc. Because they believe that there is life after death. Okay, new life begins after death. So वहाँ पर क्या रखी गई, बहुत सारी जो everyday की uses हैं, वाइन जो मटेरियल्स होते हैं, आर्टिकल्स, वो भी वहाँ टॉम में रखे गए विद लॉट ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. नाउ इट वॉज कवर्ड विद गार्लैंड्स ऑफ स्प्रिंग सेशन, ओके, प्लांट्स एंड फ्लावर्स. Tut's mummified body, it was cemented to the bottom of gold coffin. गोल्ड कॉफिन में वहाँ पर उसको स्टिक करके एक लिक्विड के साथ वहाँ पर रखा गया ड्यू टू रिचुअल फ्यूनरल सेरेमनी. Okay, now Carter kept Tut's mummy cemented to gold coffin in blazing sun. और उन्होंने क्या किया, he heated it to 149 Fahrenheit. उन्होंने वहाँ धूप में इसको रखा सो दैट कि जो गोल्ड कॉफिन है वहाँ से टुट की जो मम्मी है वो सेपरेट हो सके. बट नो फ्रूटफुल रिजल्ट्स केम, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला. कार्टर नाउ चीजल्ड बीनीथ द मम्मी टू सेपरेट इट फ्रॉम बेस, बेस से अलग करने के लिए उसको मम्मी को क्या किया गया, चीजल्ड किया गया. एंड नाउ इट वॉज सेपरेटेड, मीन्स मम्मीज head was separated first and every major joint was also separated. Now Howard Carter, he assembled the remains in a wooden box. जितनी भी चीज़ें और materials जो रखा हुआ था, जो remaining things थी, he assembled them in a wooden box so that कि जो thieves हैं they would have harmed the guards and taken away all golden adornments. जो भी चीज़ें हैं, ornaments, जो भी gold की वहाँ पर चीज़ें रखी हुई हैं, he had a fear कि जो thieves हैं वो guards को harm कर सकते हैं और उनके जो golden ornaments हैं उनको वहाँ से ले जा सकते हैं. And now what happened there? A scientific study of human body was started, an investigation was begun, and now it was led it
लेड मोर स्ट्रेस ऑन नोइंग मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ, क्योंकि ये चैप्टर डिस्कवरिंग टुट, यहाँ पर जो डिस्कवरी हुई है टुट के टॉम्ब की वो उनकी डेथ के बाद हुई है. ओके, एवरीवन वाज ईगर टू नो द मिस्ट्री ऑफ हिम, सभी उनकी डेथ कैसे हुई इतनी छोटी एज में, तो उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते थे. सो मोर स्ट्रेस वाज लेड ऑन नोइंग मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ. And for that, sophisticated tools were available. Tut's body was finally x-rayed in 1968 and after this shocking things were revealed. क्या क्या shocking facts वहाँ पर reveal हुए? First is there Tut's breastbone and front ribs they were missing. ये एक fact था जो वहाँ पर reveal हुआ. Next is here history. हेयर कम्स द हिस्ट्री ऑफ टुट, कि कहाँ से हिस्ट्री जो टुट की और भी डिफरेंट जो फेरोज थे, किंग्स थे, तो कहाँ से उन्होंने ये स्टार्ट किया. सो फाइनली टुट वॉज द लास्ट रूलर एंड दैट्स वाई व्हेन टुट्स डेथ वॉज देयर एट द टाइम इट वॉज द एंड ऑफ द डायनेसिटी. ओके, तो ये डायनेसिटी का बिल्कुल एंड हो गया वहाँ पर. टुट्स ग्रैंड फादर, वहाँ से हमारा ये जो इसका रीजन था स्टार्ट हुआ. टुट्स ग्रैंड फादर एमेनहोटेप III. Okay, he ruled for 40 years and now who succeeded him? His son Amenhotep IV, he succeeded him and he brought catastrophic changes in his dynasty. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गॉड अमुन जो वहाँ पर माने जाते थे, काफ़ी उनमें बिलीव करते थे लोग, तो सबसे पहले उनके टेम्पल्स को, इमेजेस को और जो गॉड अमुन के आइडल्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने. और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किस पर फोकस करना शुरू कर दिया? एमेनहोटेप IV ने सन को गॉड माना और उन्होंने एटन जो वर्ड है सन के लिए यूज़ किया गया है और उन्होंने अपने नेम में भी इस वर्ड को यूज़ किया और उनका नाम एमेनहोटेप से चेंज होकर क्या बन गया? एक्हीनेटन, यानी कि जो एटन वर्ड है अब उनके नेम में ऐड किया गया. नेक्स्ट, और क्या क्या चेंजेस वो लेकर आए? ही शिफ्टेड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थेब्स टू एक्हीनेटन. ओके, उन्होंने जो अपनी रिलीजियस कैपिटल थी थेब्स, उसका नेम भी अपने नेम के अकॉर्डिंग एटन वर्ड इसमें भी ऐड कर दिया. एंड दीज डेज इट इज़ नाउ कॉल्ड एज अमरना. एंड आफ्टर एक्हीनेटन अब किसने सक्सीड किया? स्मेनख्रे सक्सीडेड हिम एंड बट ही ऑल्सो रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फाइनली कौन आए? तुतनखातेन सक्सीडेड द थ्रोन. इनके नेम के पीछे भी एटन वर्ड यूज किया हुआ है. इनिशियली ही चेंज्ड हिज नेम टू तुतन खामून. इन्होंने भी अपना नेम चेंज किया और इन्होंने जो गॉड अमुन ऊपर हमने डिस्क्राइब किए थे, ठीक है, उसी अमुन वर्ड को इन्होंने अपने नेम में यूज़ किया. एंड ही फॉर दैट ही रिस्टोर्ड द ओल्ड टेम्पल्स, जो पहले डिस्ट्रॉय किए गए थे इमेजेस और आइडल्स. ओके, अब उन ओल्ड टेम्पल्स को उन्होंने रिस्टोर किया और उन्होंने अपना बिलीफ कौन से गॉड में शो किया? अमुन गॉड में. Now Tutankhamun, okay, became the last ruler and he ruled for 9 years only. उन्होंने सिर्फ 9 years के लिए रूल किया and he died a mysterious death. उनकी mysterious death हुई. So that कि यहाँ पर जो चैप्टर डिस्कवरिंग टुट है, so उनकी जो डेथ किस रीज़न की वजह से हुई, अचानक से कैसे हुई, तो ये सारे फैक्ट्स रिवील करने के लिए यहाँ पर डिस्कवरी की जा रही है किंग टूट की. नाउ द ममी प्रोजेक्ट बिगिन एंड इट बिगिन इन 2003 इन इजिप्ट and it has recorded 600 mummies and portable CT scan machine was used and it was donated by National Geographic Society and Siemens. And Tut became the first mummy to be scanned on 5th January 2005. और जब उनका स्कैन किया गया, so Tut's body was scanned from head to toe, सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी उनकी क्या किया गया? स्कैन किया गया. एंड रिजल्टिंग इन 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शंस. क्रॉस सेक्शन में कितने एक्सरे इमेजेस निकाली गई? 1700. एंड नाउ जाही हवास. जाही हवास कौन थे? जनरल सेक्रेटरी ऑफ इजिप्शियन काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज. सो ये सेटिस्फाइड हुए एंड ही वॉज फाइनली रिलीव्ड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ स्कैनिंग प्रोसीजर. एंड नाउ टुट्स बॉडी अगेन इट वॉज रेस्टेड देयर इन पीस इन हिज टॉम. हार्वर्ड कार्टर ने उनकी बॉडी को वापस उस टॉम में रख दिया एंड इट वॉज गार्डेड ड्यूली बाय ओरिसिस. जो ओरिसिस कौन है? द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ. हमने अभी बताया था ना दैट द इजिप्शियंस फेरोज दे बिलीव दैट देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ. तो लाइफ आफ्टर डेथ की गॉड कौन है? सो ओरिसिस. तो इस तरह से यहाँ पर किंग टुट की जो बॉडी है उसको वापस उनकी टॉम में रख दिया गया. ओके, सो ये चैप्टर था हमारा डिस्कवरिंग टुट द सागा कॉन्टिन्यू. सागा मीन्स द लॉन्ग स्टोरी. उनकी डेथ के बाद भी देखो इतनी मिस्ट्री बनी हुई है उनकी डेथ से रिलेटेड.
ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हमने किंग टुट के बारे में पढ़ा, उनका पास्ट क्या था, उनकी हिस्ट्री क्या हुई, और उनकी डेथ के बाद को जो मम्मी का प्रोजेक्ट था वो किस तरह से बिगिन किया गया। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हमने रीड की हैं। नाउ यू हैव टू लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।